اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاطات میں ہماری بحث اس موضوع پر تھی کہ آیا یہ معاطات اباحہ معاوضہ مستقلہ ہے یا بیع ہے۔ اس بنیاد پر وہ شروط جو بیع کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے ہونے نہ ہونے کے اوپر اقوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جناب صاحب جواہر جو یہ کہہ کے علیحدہ ہو گئے ہیں کہ معاطات میں قصد تملیک نہیں قصد اباحہ ہوتا ہے، اور محل گفتگو قصد اباحہ پر ہے، اور جب وہ بیع ہی نہیں ہے، بیع مستقل ہے، تو اس کے اندر بیع کی ساری شرطیں معتبر نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا نظریہ، مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، معاطات بیع ہے، اور جب بیع ہے تو بیع کے اندر جو شرطیں پائی جانی چاہیے سوائے صیغے کے، وہ ساری شرطیں معاطات کے اندر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں مگر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تین نظریہ آشکار ہے، چوتھا بھی ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ ان تین نظریات میں سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ معاطات علیکم السلام کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جانی چاہیے مطلقہ۔ مطلقہ سے کیا مراد ہے؟ چاہے فائدہ اباحت التصرف ہو اور چاہے فائدہ ملک ہو، مطلقاً تمام شروط بیع کے معاطات کے اندر پائے جانے چاہیے۔ یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا، اور اس کے لیے ہم نے تین شاہد ذکر کیے۔ تین شاہد کا دہرانا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کی جو بحث ہے ان تینوں شاہدوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا شاہد یہ پیش کیا تھا کہ دیکھیے، معاطات عرف میں بیع کہلاتا ہے۔ پہلے سے شارع کے آنے سے پہلے معاطات کے ساتھ، معاطات میں جو لین دین کرتے تھے اس میں تملک اور تملیک ہوتا تھا۔ باقاعدہ سے بائع اور مشتری بغیر الفاظ بولے ہوئے چیزیں لین دین کر لیتے تھے اور مالکانہ تصرف کرتے تھے، پہلے سے بیع تھا۔ شارع مقدس نے آ کر کے بعض چیزوں کی تائید کی ہے، بعض چیزوں کی تائید نہیں کی ہے۔ جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں شارع مقدس کے، وہ بیع کے لیے ہیں، اور اس میں بیع قولی ہو یا بیع فعلی ہو، دونوں کو شامل ہے۔ لہٰذا جب عرف میں بیع ہے تو شارع کے بھی احکام اور ان کی روایات اور آیات ان سب کو نازل منزلہ بیع عرفی کریں گے۔ لہٰذا جتنی شرطیں بیع کے اندر پائی جاتی ہیں بیع حقیقی کے اندر، وہ معاطات کے اندر پائی جانی چاہیے۔ یہ ایک شاہد پیش کیا تھا۔ دوسرا شاہد یہ پیش کیا تھا کہ دیکھیے، جو یہ تھا کہ ساری بحثیں جب بیع کی کتاب میں کرتے ہیں، چاہے سنی چاہے شیعہ، تو اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ بیع کے اندر لفظ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بقیہ شرطوں کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرتے، کیونکہ بقیہ شرطیں کانہو پائی جاتی ہیں مفروغ عنہ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ معاطات بیع ہے اور پھر بیع کے شرطیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تیسرا شاہد یہ پیش کیا تھا کہ محدث بحرینی نے ایک قول یہ نقل کیا کہ جتنے لوگ معاطات کی گفتگو کیے ہوئے ہیں سب نے کہا عدم لزوم، یعنی بیع صحیح ہے مگر لزوم نہیں آتا۔ مقابل میں عدم لزوم کے دو معنی نکلتا ہے، لیکن علامہ حلی کے بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیع فاسد ہے۔ تو بیع صحیح اور بیع فاسد، ان دونوں کو سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کے دونوں کم سے کم بیع ہونے کے قائل ہیں۔ لہٰذا محل گفتگو میں بیع کے اندر جو شرطیں پائی جاتی ہیں، علیکم السلام، وہ معاطات کے اندر پائی جانی چاہیے۔ یہ تین شاہد پہ توجہ رہے۔ یہ تین شاہد ہم نے وجہ اول کے لیے نقل کیا ہے، بہت اہم۔ کیا ہوا؟ مکمل گفتگو کا خلاصہ یہ ہوگا کہ آیا تمام وہ شرطیں جو بیع کے اندر پائی جاتی ہیں صیغے کے علاوہ معاطات کے اندر پائی جانی چاہیے یا نہیں پائی جانی چاہیے؟ چار نظریہ ہے۔ پہلا نظریہ، ساری شرطیں پائی جانا چاہیے عدد صیغہ مطلقہ۔ مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ چاہے اباحت التصرف ہو اور چاہے اباحت ملکیت کا ہو۔ دوسرا قول جو پڑھا وہ یہ
کہ مطلقاً بے کی شرطیں معاطات کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل معاطات بے ہی نہیں ہے، سرے سے اس کی بیعیت کا انکار کیا گیا ہے، اس لیے۔ تیسرا قول جو تفصیل والا ہے وہ یہ ہے، آج وہ پڑھیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر آپ ملکیت کے قائل ہیں معاطات میں، جیسے کہ محقق ثانی البتہ ملکیت متزلزلہ کے قائل تھے، محقق جزائری، فیض کاشانی اور شیخ انصاری صاحب، یہ 4-5 لوگ جو معاطات میں ملکیت کے قائل تھے، ان کی بنیاد پر جو شرطیں بیع کے اندر پائی جاتی ہیں وہ معاطات کے اندر پائی جانی چاہیے، عدد صیغہ۔ لیکن اگر آپ اباحت کے قائل ہیں، جیسے کہ مشہور علماء قائل ہیں، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیع کی ساری شرطیں معاطات کے اندر پائے جانا لازم نہیں۔ یہ تفصیل والی گفتگو تھی، یعنی تیسرا نظریہ تھا۔ چوتھا نظریہ بھی ہے جو اس اعتبار سے بحث کی ہے، حالانکہ اس کو کنفرم کر کے نہیں کہا کہ وجہ رابع یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بیع میں جو جو چیزیں آپ شرط کر رہے ہیں، مثلا متعاطین کا بالغ ہونا، عاقل ہونا، قابل تصرف نے مفلس نہ ہو وغیرہ، اور ثمن اور مسمن کا معلوم ہونا، مالیت رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی شرطیں بحث کی گئی ہیں وہ شرطیں جو نص روایت سے ثابت ہیں، آیات اور روایات سے ثابت ہیں، ان شرطوں کا پایا جانا معاطات میں لازم ہے۔ لیکن وہ شرطیں جو اجماع سے ثابت ہوئی ہیں، اجماع دلیل لبی ہے، قدر متیقن ہے، ان کو دیکھا جائے گا، اور اس کا تعلق اس بیع سے ہے جو بیع قولی اور بیع اصلی ہے، وہ اس میں تو ثابت ہے۔ اور معقد اجماع بھی، جہاں پہ اجماع کے ساتھ کسی شرط کو بیع کے اندر لازم جانا ہے، اس کا تعلق بیع لفظی اور بیع واقعی سے ہے، لہٰذا وہ ان شرطوں کا معاطات میں پایا جانا ضروری نہیں۔ تو چوتھا قول کیا ہوا؟ چوتھا نظریہ، چوتھی وجہ یہ ہوئی کہ وہ شرطیں جو بیع میں، اصلی بیع میں نص آیات و روایات سے ثابت ہیں صیغے کے علاوہ، وہ معاطات میں ہونی چاہیے، اور وہ شرطیں جو نص روایت نہیں ہیں، آیت نہیں ہے، بلکہ اجماع اتفاق علماء سے کسی شرط کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو چونکہ ان کی بحث کا اجماع کا معقد، اجماع کا انصراف، اجماع کا تعلق بیع اصلی اور بیع قولی سے ہے، لہذا اس کے اندر ثابت مانیں گے اس کے ذریعے سے، مگر یہ شرطیں جو اجماع کے ذریعے سے ہیں یہ معاطات میں ہونا ضروری نہیں۔ یہ 4 قول ہوا۔ جناب شیخ انصاری صاحب پہلے والے نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ کیا تھا کہ تمام شروط جو بیع کے اندر پائے جاتے ہیں مطلقہ طور پر معاطات میں پائے جانے چاہیے، چاہے معاطات کا فائدہ اباحت التصرف کا ہو، چاہے معاطات کا فائدہ ملکیت متزلزلہ کا ہو۔ پھر اس کے بعد شہید اول کے 5 چیزوں کو نقل کر رہے ہیں جو انہوں نے قواعد کے اوپر حاشیہ لگایا ہے۔ ان 5 کا پہلے پڑھیں گے، لیکن ان 5 کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ گویا وہ یہ مان کر کے چل رہے ہیں کہ معاطات میں صیغے کے علاوہ اگر کوئی اور شرط نہیں پائی جاتی ہے تب بھی معاطات بیع ہے اور اباحت التصرف کا فائدہ دے گا۔ بس 5 مثالیں ذکر کر رہے ہیں، 5 عناوین ذکر کر رہے ہیں، ان 5 عناوین کا ماحصل و نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاطات کے اندر وہ ساری شرطیں جو بیع کے اندر پائی جاتی ہیں وہ پائے جانا ضروری نہیں، اور میں چونکہ شیخ انصاری ساری شرطوں کا قائل ہوں لہٰذا وہ میرے نظریے کے خلاف جا رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ شہید اول نے قواعد کے اوپر حاشیہ لگایا، اس حاشیے میں 5 مطلب ذکر کیے ہیں، وہ 5 مطلب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاطات میں صیغے کے علاوہ کوئی اور شرط بھی بیع کی نہ پائی جائے تب بھی چلے گا، یعنی وہ معاطات صرف اباحت التصرف کا فائدہ دے گا، لزوم نہیں آئے گا، ملکیت اس کے اندر نہیں آئے گی، اور وہ 5 مطلب میرے نظریے کے، یعنی شیخ انصاری صاحب کے نظریے کے خلاف جا رہی ہیں، لہٰذا اس کی توجیہ ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں ذکر کریں گے، شاید آج اس تک پہنچ پائیں، اس کے جواب جو ہے انشاءاللہ کل۔ عبارت پہ توجہ کریں۔
बवजह सालिस यानी तीसरा नजरिया, वजह सालिस क्या है, तफसील के कायल हैं कि मुआतात में वो सारी शर्तें जो बै के अंदर पाई जाती हैं पाई जानी चाहिए या नहीं पाई जानी चाहिए। तीसरी वजह यह है हम तफसील के कायल हैं, अगर मिल्कियत के कायल हैं मुआतात में तो पाई जानी चाहिए, और अगर मिल्कियत के नहीं इबाहा के कायल है तो पाए जाना जरूरी नहीं। वजह सालिस मा तक़द्दमा लिस्सानी अलल क़ौले बिल इबाहते, कहने कि इसमें वजह सालिस में देखिए मैंने कहा कि वो बयान बहुत ज़रूरी है वजह अव्वल के दलाइल को, वो इसलिए यहाँ पे क्योंकि बहुत खुलासा कर रहे हैं। कहने कि वजह सालिस, सालिस क्या हुआ कि वो तमाम शर्तें जो बै के अंदर पाई जाती हैं वो मुआतात के अंदर पाई जानी चाहिए या नहीं पाई जानी चाहिए, हम तफसील के कायल हैं। तफसील क्या है, तफसील ये है कि अगर आप इबाहा के कायल हैं तो नहीं पाई जानी चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल्कियत के कायल है तो गोया बै मान रहे हैं तो बै मान रहे तो बै की शर्तें उसके अंदर पाई जानी चाहिए। तो करेंगे मा तक़द्दमा लिस्सानी अलल क़ौल बिल इबाहते, अस्सानी में अलल क़ौल बिल इबाहा हमने क्या कहा कि अगर इबाहा के सिर्फ कायल है तो ये बै नहीं है, जब बै नहीं है सल्ब बै उससे कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर वो शर्तें पाई जाना जरूरी नहीं है, इसलिए वाज़े करें मिन सल्बिल बै अनहा, यहाँ अनहो दिया हुआ है। अगर मुरव्वज ने बयान किया कि ज़मीर मुअन्नस होती तो ज़्यादा बेहतर था, अनहा यानी यही इबाहा जो मुजर्रद सिर्फ यही मुआतात जो सिर्फ मुजर्रद इबाहा का फ़ायदा देता है, इसके कौल कायल बिल इबाहा होने की वजह से तमाम शर्तें जो बै के अंदर पाई जाती हैं वो इसमें पाया जाना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कौल बिल इबाहा से मुआतात असलन बै नहीं है, सल्ब लफ्ज बै किया जा सकता है उस मुआतात में जिसमें सेगा नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो कहने की वजह सालिस की दलील क्या है, दलील वजह सानी में कौल बिल इबाहा से जो आया, वजह सानी क्या था, मुतलका शुरूत बै मुआतात में नहीं पाए जाना चाहिए, और उसके बाद क्या कहा था अलल कौल बिल इबाहा, तो वाज़े है, क्यों वाज़े है, वाज़े है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वजह इसलिए है कि कौल बिल इबाहा की बुनियाद पर ये एक नया मामला है, असल ये बै नहीं है सल्ब बै से किया जाएगा, लिहाजा बै की शर्तें उसके अंदर पाई नहीं जाएंगी। तो कहने की अलल मा तक़द्दम लिस्सानी अलल क़ौल बिल मिन बयानिया मिन सल्बिल बै अनहा, इस तरह के मुआतात से लफ्ज़ बै सल्ब कर लिया गया। क्या मतलब है सल्ब लफ्ज़ बै का, मतलब ये है कि ये मुआतात असलन बै नहीं है, जब बै नहीं है तो बै की शर्तें इसके अंदर पाई जाना जरूरी नहीं। वलिल अव्वल अलल क़ौल बिल मिल्क, लेकिन जो वजह अव्वल में हमने जिक्र किया था, वजह अव्वल क्या थी, तमाम शुरूत बै मुआतात में पाए जाने चाहिए, वो भी मुतलका, चाहे इबाहा के कायल हो चाहे मिल्कियत के, सारी शर्तें पाई जानी चाहिए मुआतात में। तो अब जो अलल कौल बिल मिल्क क्या कहा था कि देखिए उर्फ इस मामले को बै मानता है, और बै जब मानता है तो जितने आयात और रवायात वगैरह जिक्र हुए सब उस नाजिर हैं उर्फ वाले बै के ऊपर, लिहाजा वो सारी शर्तें पाई जानी चाहिए। वलिल अव्वल यानी कौल सालिस की दलील के तौर पर हम कौल अव्वल को ला रहे हैं कि जिसमें हम कायल बे मिल्क थे। कायल बे मिल्क ने क्या कहा था वजह अव्वल में, ये कहा था मिन सिद्क़िल बै अलैहा, कि इस मुआतात पे अलैह जिक्र हुआ है, लेकिन जहन में रखिए उस मुआतात की बात हो रही है जिस मुआतात में सेगा नहीं है सिर्फ, कहने कि मिन सिद्क़िल बै अलैह, इस मुआतात के ऊपर बै सादिक आता है। हीन से मुराद क्या है कि जिस वक्त मिल्कियत का ये फायदा दे रहा है। कौल अव्वल में हमने कहा इबाहा की बुनियाद पे भी मिल्कियत की बुनियाद पे भी, लेकिन कौल अव्वल क्या था, तमाम शुरूत बै मुआतात में पाए जाने चाहिए, क्योंकि मुआतात बै है और जब बै है तो उसकी सारी शर्तें उसके अंदर होंगी और उसके ऊपर बै सादिक आएगा। व इन लम यकुन लाजिमन, अगरचे ये लाजिम नहीं होगा, लुजूम आवर नहीं है, लेकिन मिल्कियत तो है, तो यही मिल्कियत हमारे लिए काफी है। तो तीसरी वजह क्या हुई, तीसरी वजह में हम इस बात के कायल हैं कि अगर आप
इबाहे के कायल है मुआतात में, तो बै की शर्तें मुआतात में पाई नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप मिल्कियत के कायल हैं तो वो बै है, बै उर्फी है। सारी शर्तें जो बै के अंदर पाई जाती हैं वो मुआतात के अंदर पाई जानी चाहिए। ये हो गया तीसरा नजरिया, तीसरा कौल। वजह राबे को बयान करने जा रहे हैं लेकिन दूसरे अंदाज से, वो ये है वयुमकिनुल फर्क बैन शर्त, और उसके बाद दो सदर, एक सदर के बाद वबैन मा सबता, कहने कि हाँ एक फर्क आप और कर सकते हैं किस सिलसिले में, मुआतात के सिलसिले में, कि आया मुआतात बै की तरह से, बै की तरह से सारी शर्तें इसके अंदर पाई जानी चाहिए या नहीं। तवज्जो रहे, महल्ले गुफ्तगू क्या है, महल्ले गुफ्तगू ये है कि मुआतात में वो सारी शर्तें जो बै के अंदर पाई जाती हैं अदद सेगा, वो पाई जानी चाहिए या नहीं। चौथा नजरिया यह है कि देखिए शर्तें जो बै में रखी गई हैं वो शर्तें कैसे रखी गई हैं। आयत से साबित है, अहल्लल्लाहुल बै मसलन, जितनी भी मैं मिसाल के तौर पे आयत मैंने जिक्र की, जो भी शर्तें बै के अंदर पाई जा रही हैं वो शर्तें आया आयात और रवायात के उमूमात और इतलाकात से आपने उसको समझा है। मसलन समन ऐसा होना चाहिए, मुस्मन ऐसा होना चाहिए, बाय ऐसा होना चाहिए, मुश्तरी ऐसा होना चाहिए, बालिग हो, आकिल हो, मुतसर्रिफ हो, ममनू तसरुफ ना हो, समन और मुस्मन मालियत रखता हो, कीमत रखता हो, काबिल तसरुफ हो, काबिल कब्ज हो, इकबाज वगैरह हो। ये सारी शर्तें आपने कहाँ से साबित की? आयात और रवायात से। अगर ऐसा है तो मुआतात भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि वो शर्तें जो नस्स रवायात वगैरह से साबित हुई हैं वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शारे की आयत और रवायात जो उस जमाने में जो बै कहलाता था उन्हीं के बारे में गुफ्तगू कर रहा था, लिहाजा मुआतात में भी वो शर्तें पाई जानी चाहिए। वयुमकिनु अल फर्क बैन शर्त अल्लज़ी सबता एतबारुहु फिल बैअ मिनन नस्स, यानी कि जो शर्तें साबित हैं उनका एतबार, उनका मोतबर होना, उनका पाया जाना बै के अंदर मिनन नस्स से, नस्स से रवायात से है, नस्स से आयात से है। आप यहाँ पे उमूम में उमूम का इतलाक का लफ्ज इस्तेमाल करिए, नस्स से रवायात से, नस्स से आयात से जो उमूमात उमूमियत रखती हैं वो उमूमियत अहल्लहुल बै में जैसे है, तिजारतन अंतराज वगैरह में है, और दीगर रवायतें जो आयतें पेश की गई हैं उनके जरिए से अगर बै में उन शर्तों को साबित किया है तो मुआतात में भी पाई जानी चाहिए, क्योंकि मुआतात भी बै है और उस जमाने में शारे ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस जमाने के बै के मुताबिक इस्तेमाल किए हैं। फयुमकिनु फयुहमलो अलल उर्फी, फयुहमलो अलल बैउल उर्फी, उन शर्तों को बै उर्फी के ऊपर हमल किया जाएगा। वइन लम युफिद इंद शारे इल्लल इबाहा, अगरचे उन शर्तों के फायदा कुछ ज्यादा खास नहीं होगा, शारे के नजदीक उससे सिर्फ ये इबाहतु तसर्रुफ आएगा, मिल्कियत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उन शर्तों को मुआतात में लाजिम समझा जाएगा। वह युहमलो यानी क्या चीज, यानी वो शर्तें जो बै में नस्स से आयात व रवायात से साबित हैं वो इस मुआतात में भी लाजिम समझी जाएंगी, क्योंकि हमने इस मुआतात को बै उर्फी समझा है। अब बै उर्फी समझने के बाद वो शर्तें आ जाएंगी, अगरचे शारे के नजदीक इन इस मुआतात में जहाँ पे सेगा नहीं है, क्या साबित होगा? सिर्फ इबाहा साबित होगा, मिल्कियत नहीं आएगी। वो अलग बात है, भले ही मिल्कियत ना आए मगर इन शर्तों को बै उर्फी के ऊपर हमल किया जाएगा, इन सेगों को, इन नस्स रवायत को बै उर्फी पे हमले किया जाएगा। लिहाजा बै उर्फी पर जब हमले करेंगे तो उसके दो फर्द हैं, एक फर्द क्या है बै सेगी, बै लफ्जी, और एक बै है कौली, सॉरी बै कौली और लफ्जी, और एक बै अमली एताई, उन दोनों के ऊपर हमले किया जाएगा। लिहाजा वो शर्तें जो बै में मुतलक तौर पर साबित हैं वो मुआतात में साबित हो जाएंगी। वबैना मा सबता बिल इजमा अला एतबारही फिल बै, और वो शर्तें कि जो बै में होनी चाहिए मगर उसका एतबार कहाँ से आया है? इजमा से आया है, उलमा के इत्तेफाक से। खूब उलमा का इजमा और इत्तेफाक कहाँ पे होता है? वो बै जो शारे के नजदीक मोतबर होती है उसके ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं। लिहाजा वो शर्तें जो बै के अंदर साबित तो है
मगर ये जो बै के अंदर साबित हुई है इससे आयत और रवायत से साबित नहीं हुई है, उलमा के इत्तेफाक से इजमा से साबित हुई है। वो शर्त मुआतात में पाया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका इंसराफ क्या होता है, अक़द लाजिम और अक़द सेगई की तरफ होता है। वबैनमा सबता बिल इजमा अला एतबार ही फिल बै, और उस शर्त में जो इजमा से साबित हुई है कि वो मोतबर होना चाहिए, पाई जानी चाहिए वो शर्त बै के अंदर। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि इसका फर्क है उसमें और इसमें, बिनाअन अला इंसराफ अल बै, कलिमा बै जब इस्तेमाल करते हैं कौन, फी कलिमातिल मुजमईन, उलमा फुक़हा जो इजमा कर रहे हैं उनमें वो कलिमा जो लफ्ज़ बै इस्तेमाल करें उसका इंसराफ किसी तरफ है, इलल अक़दिल लाज़िम, अक़द लाज़िम की तरफ। अक़द लाज़िम कौन, वही बै कौली, यानी वो बै जो असली है, अगर किसी चीज को वो मोतबर मानते हैं तो वो मोतबर किस बुनियाद पे मानते हैं, किस लिए, उस बै के लिए जो लाजिम है, उस बै के लिए जो बै लफ्जी है। खूब जनाब शेख अंसारी साहब, आपने ये जो फर्क किया है चौथे नजरिए में, क्या हुआ, फर्क किया, क्या फर्क किया कि तमाम शर्तें जो बै के अंदर लाजिम हैं कि मसलन समन ऐसा हो, मुस्मन ऐसा हो, मुतबायन, बालिग, आकिल, मुतसर्रिफ वगैरह, मिल्कियत वगैरह, ये सब होनी चाहिए। वो सारी शर्तें जिनको नस्स रवायत के जरिए से बै में आपने साबित किया है वो पाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारा मुआताद भी बै है और उसमें इसको बै माना जाता है। लेकिन जो इजमा के जरिए से शर्तें साबित हुई उनका इंसराफ बै लाजिम की तरफ है, बै मुतज़ल्लिल की तरफ नहीं है, लिहाजा वो शर्तें मुआतात में होना जरूरी नहीं। ये चार एहतमाल हमने पेश किए। पहला एहतमाल क्या था, सारी शर्तें पाई जानी चाहिए। दूसरा क्या था, कोई भी शर्त नहीं पाई जानी चाहिए क्योंकि मुआतात बै नहीं। तीसरा क्या था, तफसील के कायल हुए थे कि अगर इबाहा के कायल हैं तो ज़रूरी नहीं है, मिल्कियत के कायल हैं तो सारी शर्तें पाई जानी। चौथा कौल अभी साबित किया, चौथा एहतमाल ये था कि जो शर्तें नस्स रवायात वगैरह से साबित है पाई जानी चाहिए मुआतात में, जो इजमा वगैरह से है वो कदर मुतयकीन की तरफ जाती हैं, वो पाया जाना ज़रूरी नहीं। अब इन चार एहतमालात में से जनाब शेख अंसारी किसका इंतखाब कर रहे हैं, वल एहतमालुल अव्वल ला यखलु अन कुव्वतिन, मैं पहले एहतमाल का कायल हूँ, यानी सेगे के अलावा बै में जितनी चीजें आपने लाजिम जानी हैं मुआतात में वो भी होनी चाहिए। बच्चे के जरिए से लेन देन नहीं कर सकते, मजनून के जरिए से लेन देन नहीं कर सकते, वो चीजें जो मिल्कियत नहीं रखती उसके ऊपर मुआमला नहीं कर सकते, वो चीजें ममनू हैं जिनका इस्तेमाल करना, खरीदो फरोख्त करना, मसलन समन वगैरह, जैसे बै में जायज नहीं वैसे मुआतात में भी जायज नहीं। खुलासे कलामी है कि पहला एहतमाल कुव्वत से खाली नहीं है। दलील ये है लिकौनहा बैअन ज़ाहिरन अलल कौल बिल मिल्क, कौल बिल मिल्क की वजह से तो वाज़ेह है कि ये बै है। बै पहले से शरीयत के आने से पहले, ज़ाहिरी तौर पे शरीयत के आने से पहले मुआताद बै था। बै के ज़ाहिरन क्यों कह रहे हैं, ज़ाहिरन यही राइज था, मशहूर यही था, मुआताद करते थे, कोई चीज फेंक करके लेन देन करते थे या अल्फाज कुछ भी इस्तेमाल करते थे, लेन देन करते थे और लेन देन करने के बाद उसके ऊपर मालिकाना तसर्रुफ करते थे। तो कहने की पहला एहतमाल कुव्वत से खाली नहीं है, लिहाजा मुआताद में वो सारी शर्तें पाई जानी चाहिए जो बै के अंदर पाई जाती हैं। और खास तौर से क्यों, लेकौनहा ज़मीर यहाँ पलटे मुआताद की तरफ, क्योंकि मुआताद बै है ज़ाहिर अलल कौल बिल मिल्क, अगर हम मिल्कियत के कायल हैं तो बै है यकीनन ला शक वला रैब। हला इबाहा के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, फिलहाल गुफ्तगू हो रही कि अगर हम मुआतात में मिल्कियत के कायल हैं, जैसे कि मुहक्किक सानी और खुद शेख अंसारी साहब, मुहक्किक जदारी, फैज़ काशानी, ये चंद लोग जो मिल्कियत के कायल हैं, बकिया सारे अक्सरियत किसके कायल हैं, मुआतात में इबाहा के कायल हैं। लेकिन हम दोनों कौल पे करें, मुतलका कहने की बै के अंदर जो शर्तें पाई जाती हैं वो मुआतात के अंदर पाई जानी चाहिए। अलल कौल बिल मिल्क कमा अरफ्ता मिन जामिल मकासिद, जनाब मुहक्किक करकी ने क्या कहा था कि मैं बै को, मुआतात को बै समझता हूँ और ये मिल्कियत इसमें आती है, मगर कौन सी मिल्कियत, मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला, मिल्कियत जायज़ा। वअम्मा अलल कौल बिल इबाहा, आप एहतमाल अव्वल की तायीद कर रहे हैं। एहतमाल अव्वल क्या है कि सारी शर्तें पाई जानी चाहिए, तो वहां पे मुतलका कहा है, मुतलका यानी क्या, चाहे मिल्कियत के कायल हो चाहे इबाहे के ऊपर भी समझाइए कि कैसे आप तायीद कर रहे हैं। वअम्मा अलल कौल बिल इबाहा, लेकिन मुआतात में जैसे कि मशहूर इबाहा के कायल हैं, फले अन्नहा,
क्योंकि ये मुआतात लम तस्बुत इल्ला फिल मुआमलत फाक़िदत लिस्सिक़त फ़क़त, क्योंकि ये मुआमला मुआतात का इसमें सिर्फ एक शर्त फाक़िद है, वो क्या है? सेगा ना होना। बकिया सारी चीजें बै की जैसी हैं। जब बै की जैसी हैं तो चाहे हम मुआतात में इबाहा के कायल हों, बै तो है, जब बै है तो इसके अंदर सारी शर्तें पाई जानी चाहिए। मुआतात है अलल कौल बिल इबाहा, मुतवज्जे रहें, आपने पूछा तो तवज्जो करें। फल अन्हा यानी ये अलल कौल बिल इबाहा, ये मुआतात इल्ला फिल मुआमलतिल फाक़िदत लिस्सिग़त, जहाँ सेगा नहीं पाया जाता है वहां पे हम इबाहा के सिर्फ कायल है ना। फला यशमलु अल फाक़िदा लिश्शर्तिल आखिर ऐज़न, लिहाजा ये मुआतात अगर कोई और शर्त ना पाई जाए बै वाली, अगर कोई और शर्त पाई ना जाए तो उसको ये शामिल नहीं है। तवज्जो करें क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि हमने एहतिमाल अव्वल की तायीद की। एहतिमाल अव्वल ये है कि तमाम शुरूत बै के मुआतात के अंदर पाए जाने चाहिए, चाहे कौल बे मिल्क के कायल हों चाहे कौल बिल इबाहा के कायल हों। मिल्क के अगर कायल हैं तब तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको बै मानते हैं और जामिउल मकासिद से उसका हमने वाज़े किया कि कौल बिल मिल्क की बुनियाद पर यह बै है, बै में मिल्कियत है, मिल्कियत जायज़ा है। लेकिन कौल बिल इबाहा में क्या है, कह रहे कि मुबाह होने के कायल क्यों हैं? इसलिए कायल हैं क्योंकि यहाँ पे सेगा नहीं है। सेगा ना होने की वजह से ये बै है, मगर वो वाला बै नहीं है जो सही फोन आ रहा है, वो वाला बै नहीं है कि जो सेगे वाला जिसके अंदर लुजूम आ जाता है। लिहाजा कौल बिल मिल्क की बुनियाद पर हम ये कहेंगे लम तस्बुत इल्ला फिल मुआमलतिल फाक़िदत लिस्सिग़त, क्योंकि कौल बिल इबाहा की बुनियाद, हालांकि यही इबाहा साबित नहीं है मगर उस मामले में जो फाक़िदे लिस्सिग़ा है फ़क़त। फला यशमलु अल फाक़िद लिश्शर्तिल आखिर ऐज़न, मैं शेख अंसारी ये कह रहा हूं कि अगर कोई और शर्त नहीं पाई जाती है, अगर कोई और शर्त नहीं पाई जाती, क्या वहां पे भी इबाहतुत तसर्रुफ आएगा? नहीं आएगा, वाज़ेह है। तो इसलिए लाजिम है कि उसके अंदर बै की सारी शर्तें पाई जानी चाहिए इला आखिर। सुम्मा इन्नहु हुकिया अन शहीद रहमहुल्लाह फी हवाशीह अलल क़वाइद, क़वाइद अहकाम अल्लामा की किताब है, उसके ऊपर हाशिया शहीद अव्वल ने लगाया। जब सिर्फ शहीद कहा जाए कि फ़िक़ही किताबों में तो उससे मुराद शहीद अव्वल होते हैं, और अगर शहीद सानी हो तो वहाँ पे सिफत जो है सानी की लगाई जाती है। उन्होंने क्या किया है क़वाइद के हाशिये में, अन्नहु बअदा मा मनअ मिन इखराजिल माखूज़ बिल मुआतात फिल खुम्स व ज़कात व समनिल हदिय इल्ला बाद तलफिल ऐन यानी अल ऐनुल उखरा। उन्होंने कहा देखिए मुआतात के जरिए से लेन देन हुआ, तवज्जो करें, नकले मिल्क कर रहे हैं, नीयत क्या है? तमलीक करना एक दूसरे के ना, बहुत मुतवज्जे रहे। तमलीक की नीयत से नकलो इंतकाल हुआ। जो लोग सेगे अरे जो लोग बै होने के कायल हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, मालिकाना तसर्रुफ करेंगे। और महक़िक़ करकी वगैरह ने भी ये बात कही है और दीगरान ने भी। लेकिन ये जनाब शहीद अव्वल ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो माल माखूज़ बिल मुआतात हुआ है ना, इसके ऊपर आपकी मिल्कियत नहीं आई है, लिहाजा खुम्स के तौर पर इस माल को नहीं दे सकते, क्योंकि खुम्स के लिए आपकी मिल्कियत होनी चाहिए। ये एक बात। तो ये क्या मुआतात को मिल्कियत नहीं बना रहे हैं, मिल्कियत मुआतात में लिए हुए माल की मिल्कियत के कायल नहीं। ज़कात के तौर पे भी नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात अपने माल में, दूसरे के माल को थोड़ी ज़कात के तौर पे देना है। तीसरे, कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना है, उस कुर्बानी के जानवर को खरीदना अपने माल से खरीदे, दूसरे के माल से नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से इस्तिताअत, हज की इस्तिताअत, जब तक कि अपना माल नहीं होगा तब तक आप हज नहीं कर सकते। इसी तरीके की 4-5 मिसालें उन्होंने दे करके ये कहा है माखूज़ बिल मुआतात माल मिल्कियत आवर नहीं है। जब मिल्कियत आवर नहीं है तो उसको मालिकाना तसर्रुफ, जब मसलन बै करना, इत्क करना, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, इत्क करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ये जायज़ नहीं है। या खुम्स और ज़कात के तौर पर उस माल माखूज़ को नहीं दिया जा सकता। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जनाब शहीद अव्वल की इबारत ये बता रही है कि मुआतात मिल्कियत आवर नहीं, बै नहीं है। बज़ाहिर ये नतीजा निकल रहा है।
और भी चीजें। सुम्मा इन्नहु के यानी शहीद रहमहुल्लाह फी हवाशी है अल कवायद अल हाशिया, हवाशी जो लगाए हैं इसके ऊपर कवायद के ऊपर, अन्नहु बअदा मा मना, पहला मतलब ये है कि उन्होंने मना किया है। क्या मना किया है कि इखराजुल माखूज बिल मुआतात फिल खुम्स व ज़कात व समनिल हदिये, कि आप मुआतात के तौर पर लिए हुए माल को खुम्स के तौर पे इखराज नहीं कर सकते, ज़कात के तौर पर नहीं दे सकते, समनुल हदिये कुर्बानी की कीमत के तौर पर नहीं दे सकते, मगर उस वक्त दे सकते हैं कि जो आपने तरफ मुकाबिल को दिया है, आपने तरफ मुकाबिल को जो चीज दी है वो उसमें मालिकाना तसर्रुफ कर चुका हो, या उसको तलफ कर चुका हो, तोड़ फोड़ कर चुका हो, खाप चुका हो, तब आपकी मिल्कियत बन जाएगा माल माखूज बिल मुआतात। और जब आपकी मिल्कियत बन जाएगा तो आप खुम्स के तौर पे दे सकते हैं, ज़कात के तौर पे दे सकते हैं, समनुल हदिये के तौर पे दे सकते हैं। इसलिए करें कि मना किया है मुआतात में माखूज खुम्स के तौर पे, ज़कात के तौर पे, कुर्बानी के तौर पे देना, इल्ला बअदा तलफिल ऐन, ऐन से मुराद कौन सा, यानी अल ऐनुल उखरा, वो जो दो मुकाबिल में आपने दूसरे को दिया है ना, मुआतात में दो तरफ है ना, दो दूसरे को दिया, अगर वो उस ऐन को तलफ कर दे, बेच दे, फरोख्त कर दे, राह खुदा में मसन आजाद कर दे, कुछ भी मालिकाना अगर तसर्रुफ कर ले, तसर्रुफ और तलफ हो जाए, तब आप खुम्स के तौर पर दे सकते हैं, ज़कात के तौर पर दे सकते हैं वो माल जो माखूज बिल मुआतात है। ज़करा, एक तो मना किया है, फिर उसके बाद ज़करा, जनाब शहीद अव्वल कवायद के हाशिम करते हैं, ज़करा अन्नहु यजूज़ु अन यकून समन वल मुस्मन फिल मुआतात मजहूलैन। हम जानते हैं कि बै में क्या होना चाहिए, बै में ये होना चाहिए समन और मुस्मन मालूम होना चाहिए। ये क्या कहना है शहीद अव्वल कि अगर समन या मुस्मन या दोनों मजहूल हो तब भी जो है चलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप इसे बै नहीं मान रहे हैं। और एक और शर्त जो फाकिद है उसको भी मुआतात के हुक्म में ला रहे हैं। क्या है वो शर्त, यानी सेगा ना होने के साथ साथ मालूमियत समन और मुस्मन भी ना हो, जहालत हो तब भी चलेगा। ये इस बात की दलील है कि आप मुआतात को बै नहीं मान रहे हैं। ज़करा अन्नहु यजूज़ु अन यकून समन वल मुस्मन, समन और मुस्मन दोनों मुआतात में मजहूल हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, लिअन्नहा लैसत अक़दन, क्योंकि ये मुआतात उसे वो अक़द नहीं समझते, बै नहीं समझते। अक़द वाक़ई जिसमें समन और मुस्मन में तसर्रुफ करने का हक हो जाता है वो नहीं मानते। दूसरे लफ्जों में एक और शर्त फाकिद है, वो क्या है, मालूमियत समन और मुस्मन, और फिर भी जो है इसको कहा कि मुआतात है और इसमें तसर्रुफ नहीं कर सकते। लिअन्नहा लैसत अक़दन, अन्ना लिअन्नहा यानी कौन, मुआतात जो खालियत सेगा है, अगर खालियत समर मुस्मत की मालूमियत भी हो तब भी ये मुआतात चूंकि अक़द नहीं है लिहाजा समर मुस्मत मजहूल है तो चलेगा। ये दो बात। तीसरे वकज़ा जहालतुल अजल, अजल यानी मुद्दत। हम आप अगर इजारे के तौर पे कोई चीज लेन देन कर रहे हैं तो इजारा की मिकदार मुकर्रर होनी चाहिए और इजारा में मुद्दत मुकर्रर होना चाहिए। अब अगर मुआतात के तौर पर इजारा, ये बै की बात नहीं हो रही, मुआतात के तौर पर इजारा कर रहे हैं तो उसमें मुद्दत अगर आपने जिक्र नहीं की तो कहने चलेगा, तब भी सही है। वकज़ा जहालतुल अजल व अन्नहु, हाँ वकज़ा जहालतुल अजल, बात खत्म हो गई। और इसी तरीके से अगर मुआतात में, मुआतात कौन सा मुआतात, इजारई मुआतात, इजारे का मामला कर रहे हैं और मुआतात यानी सेगे आजरतो वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अगर सेगा नहीं है तब तो मुआतात है, इजारई मुआतात है। मगर एक शर्त और भी फाकिद हो, वो कौन सी, मुद्दत ना हो तब भी चलेगा। वकज़ा जहालतुल व अन्नहु लौ इश्तरैता अमतन बिल मुआतात, चौथी मिसाल दे रहे हैं, अगर आपने मुआतात के जरिए से कनीज खरीदी तो कनीज अगर बै असली के जरिए से खरीदी हो, घर में झाड़ू पोछा करे वो भी सही है और उससे आप इस्तेफादा करना चाहे वो भी कर सकते हैं, सही। लेकिन अगर मुआतात के जरिए से आपने कनीज खरीदी है, लम यजुज लहू निकाह हुआ, निकाह मुराद नहीं बाती है, उसके साथ वत यह हम बिस्तरी जायज नहीं है। क़ब्ला तलफ़िस समन, जब तक कि तरफ मुकाबिल ने जो कीमत ली है अमा की, अगर उस
कीमत को उसने खा लिया, पी लिया, बेच दिया, इर्स के तौर पे दे दिया, हदिया कर दिया, कुछ भी, जब तक वो तलफ ना हो जाए तब तक ये कनीज इबाहतुत तसर्रुफ, झाड़ू पोछे के लिए जायज है। निकाह उसके साथ, निकाह से मुराद यहाँ पे क्या है, वो यहाँ वती, वती जायज नहीं है। इससे क्या पता चला कि जनाब शहीद अव्वल ये बताना चाह रहे हैं कि मुआतात मिल्कियत आवर नहीं है, अक्द नहीं है, बै नहीं है। अगली मिसाल और आखिरी मिसाल, वह फी बाब सरफ ऐज़न, सरफ मामले में क्या है, सराफी में लेन देन दिरहम व दीनार का होता है। दिरहम व दीनार जिस मजलिस में बैठे हो वहीं पर इधर उधर मुंतकिल हो जाना चाहिए, कब्ज़ व इक़बाज़ हो जाना ज़रूरी है। लेकिन मुआतात के तौर पर अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, हो के अनहो, अनहो यानी शहीद, फी बाब सरफ ऐज़न के अन्नहु ला युतबरु तकाबुस फिल मजलिस फी मुआतातिन नकदैन, अगर नकदैन के ऊपर मुआमला कर रहे हैं, दिरहम व दीनार के ऊपर मुआमला कर रहे हैं और बै कौन सा कर रहे हैं, बै उस सरफ कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, शर्त है तकाबुस फिल मजलिस, नक्ल इंतकाल जो है माल का हो जाना चाहिए। ये कहने की नहीं, अगर मुआतात के तौर पर नकदैन का मुआमला कर रहे हैं तो तकाबुस फिल मजलिस लाजिम नहीं है। यानी क्या, यानी ये चूंकि ये अक्द नहीं है, एक बै नहीं है, एक किस्म का मामला जदीद है, तो इसमें लेन देन तकाबुज, बाद में तकाबुज करें, समन और मुस्मन को इधर उधर करें, चलेगा। ये 5 मिसालें जनाब शहीद अव्वल से नकल हुई हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि हमारे नजरिए, शेख अंसारी साहब फरमा रहे हैं, हमारे नजरिए के बरखिलाफ जा रहा है। हम किस बात के कायल हैं कि सेगे के अलावा तमाम शर्तें जो बै के अंदर पाई जाती हैं वो सारी की सारी शर्तें मुआतात के अंदर पाई जानी चाहिए। और आपने 5 मिसालें दी हैं जिससे ये पता चलता है कि ये अक्द नहीं है, और एक कोई और शर्त फाकिद हो तब भी चलेगा मामला, यानी मगर वो बै नहीं है। जैसे कि मुआतात के जरिए से ली गई क्या नाम है, कनीज को झाड़ू पोछा कर सकती है, उससे वत नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, यानी आप मिल्कियत के उसके कायल नहीं हो रहे। कब तक, जब तक कि तरफ मुकाबिल जो पैसा लिए हुए है उसको इस्तेमाल ना करे, तलफ ना करे। वाज़े है। तो यानी ये बताना चाह रहे हैं कि ये अक्द की तरह से नहीं है, बै की तरह से नहीं है। या जो खुम्स की मिसाल, ज़कात की मिसाल और दीगर मिसालें दी गई हैं, इससे भी ये वाज़े हो गया कि शहीद अव्वल इसको बै नहीं कहते, अक्द का लफ्ज़ इस्तेमाल के, लेन्ना लैसत अक्दन, ये अक्द नहीं है, ये मामला जो है बै जैसा नहीं है। लिहाजा शहीद अव्वल के नजरिए से हमारे नजरिए में टकराव पैदा हुआ है, इसलिए इन 5 मिसालों को हमारे लिए जरूरी है कि इसका जवाब दें, जो इंशाअल्लाह कल देंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।